Do you ever feel like your thoughts are running wild? A never ending loop of overthinking happening. You feel stuck in the same cycle day after day. Your mind is so cluttered that you can't even able to focus on one thing. If the answer of all these questions is yes, then watch this complete video. What if I tell you that there is a scientific way to declutter your mind and to gain a laser sharp clarity? Stick around because this one habit can change your life. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, my name is Sakshi and the goal of this channel is to add some value in your life. This channel is all about self-improvement, growth, career, books and healing. If any of these interest you, then this is the channel you need to subscribe. I have been in the exact place you are now, lost in the sea of overthinking, constantly chasing clarity but only finding stress. बट ये तब तक ही था जब तक मैंने जर्नलिंग की सच में जो पावर है उसको पहचाना नहीं था, उसको डिस्कवर नहीं किया था. Journaling isn't just about writing your random thoughts in notebook. It's a powerful tool backed by science to help you understand yourself. एक टाइम के बाद ना जर्नलिंग हीलिंग बन जाती है. आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है. ओके, ये आप हो और ये आपके थॉट्स हैं. आप अपने थॉट्स को देख पाते हो, समझ पाते हो, और ऑब्वियसली जब आप अपने थॉट्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी. सो जर्नलिंग इज मोर देन जस्ट राइटिंग योर थॉट्स. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई जर्नलिंग इज सच अ पावरफुल टूल. सी, जब तक थॉट्स सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं ना, दे कैन फील ओवरवेलमिंग. बहुत हैवी एंड बहुत बिखरा हुआ सा फील होता है उन थॉट्स को जब हम सोचते हैं. बट द मोमेंट यू राइट देम डाउन ना, यू गिव देम स्ट्रक्चर. आप अपने माइंड में चल रहे डर, परेशानी, टेंशन, वरी या किसी आइडिया को जब आप लिखते हो ना, तो एक शेप दे देते हो. यू टर्न इनटेंजिबल थिंग इनटू समथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली सी एंड प्रोसेस. Research published in the Journal of Experimental Psychology shows that writing about your emotions can lower your stress and improve your problem solving skills. Why? Because journaling activate करती है आपके prefrontal cortex को, which is a logical part of your brain. Think of your mind as a messy closet. Journaling is like taking everything out, sorting into categories and finding exactly what you need. जब हम लिखते हैं ना, हमारा माइंड प्रोसेस करता है उन जम्बल्ड थॉट्स को जो हमारे माइंड में टेंशन क्रिएट कर रही होती है, कंफ्यूजन, एंगर, एंजाइटी, ये चीजें क्रिएट कर रही होती हैं. और जब हम लिख देते हैं ना उन चीजों को एक पेपर पर, तो हमें चीजें साफ साफ समझ में आने लगती है. हमारा माइंड उनको बेटर तरीके से प्रोसेस कर पाता है. Here's where magic happen. When you are alone, sit with your thoughts and write it on a paper. Step number 1 is brain dump. 5 मिनट का टाइमर सेट कर लो and write anything in your mind. It could be fear, it could be frustration, it could be happiness, ideas, anger, it could be anything. Okay, this is your no judgment zone. So जो भी लिखना है अपने मन की बात without filter उस पेपर पे लिख डालो. Step number 2 is reflect. Now it's time to introspect. Ask yourself, why do I feel this way, or what can I learn from this experience? जब तुम इन क्वेश्चन को आंसर करोगे ना, लिखोगे, तो तुम्हें अपने जो इमोशंस है ना उनका कोर समझ में आने लगेगा. तुम्हें समझ में आएगा. तुम बहुत बार ये रियलाइज करोगे दैट इशू इतना भी बड़ा नहीं था जितना तुम्हारे माइंड ने बना लिया था. ओके, एंड लिखने से तुम्हें उसका सोल्यूशन समझ में आने लगेगा जो तुम्हें शायद पहले नहीं आ रहा था. नाउ कंक्लूड योर जर्नलिंग सेशन बाय आस्किंग योरसेल्फ, व्हाट स्मॉल स्टेप कैन आई टेक टुडे टू फील बेटर और टू सॉल्व दिस इशू. This will turn this reflection into action and gives you clarity and control. फर्स्ट करो तुम्हारे किसी लव्ड वन के साथ या किसी फ्रेंड के साथ में कोई लड़ाई हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है. नाउ यू आर रिप्लाइंग द कॉन्वर्सेशन इन योर हेड. ठीक है, कि उस टाइम पे उसने ये बोला था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था आगे से, और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तुम बहुत हर्ट फील कर रहे होते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे डील करें इन सिचुएशन से, या मुझे क्या करना चाहिए. होता है ना ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि उस मोमेंट पे जब हम होते हैं तब हम जो रिप्लाई करना चाहते हैं उसको बाद में सोच के रिप्लाई कर रहे होते हैं अपने माइंड में. वो पर्सन हमारे सामने भी नहीं होता, फिर भी हम उसको अपने माइंड में रिप्लाई किए जा रहे होते हैं, और इस चीज से हम मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं. ओके, बहुत डैमेज हो जाते हैं. तो इन दिस सिचुएशन हाउ जर्नलिंग हेल्प्स, अब मैं तुम्हें बताती हूँ.
सबसे पहले तो ब्रेन डंप, ओके, राइट एवरीथिंग यू आर फीलिंग विदाउट होल्डिंग बैक। जो भी तुम्हें फील हो रहा है, लेट्स से आई एम फीलिंग अनअप्रिशिएटेड और यू डिडंट लिसन टू मी, या मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर, ओके। वंस इट्स ऑन पेपर, नाउ रिफ्लेक्ट। तुम सोचो, तुम समझो कि क्या मतलब क्या मैंने जो एक्सप्रेस करना चाहा था, जो मैं जो मैं कहना चाहती थी उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया, या यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग देम टू रीड योर माइंड, ओके। तुम इससे बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि कहाँ पे तुम्हारी गलती थी, कहाँ पे तुमने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, या उन्होंने कुछ गलत समझा, एवरीथिंग तुम्हें क्लियरली चीजें समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, प्लान, ठीक है। अब तुम लिखो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, ओके। मे बी तुम ये फील करोगे कि मैं अपने इमोशंस को क्लियरली बैठ के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, या हम बैठ के बात करेंगे। इस प्रोसेस को करने से तुम्हारी जो एंगर है वो अंडरस्टैंडिंग में, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक्शन में बदल जाएगी। इससे तुम सबसे पहले तुम खुद मेंटली बहुत सॉर्ट हो जाओगे। तुम्हें समझ में आने लगेगा दैट हाँ, यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था, ये चीज मुझे उनको क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। तुम अपने साइड से जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हैं वो सारी चीजें तुम्हें समझ में आने लगेंगी, ओके। फिर सेकेंडली, जो सामने वाला पर्सन है उसको तुम बेटर समझा पाओगे, बेटर क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे, और जो तुम्हारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको सॉल्व करने के लिए तुम इतने यू आर मेंटली एबल टू सॉल्व दैट इशू। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें जर्नलिंग, वैसे तो किसी भी सिचुएशन में, ओके। बट ये मैंने एक एग्जांपल दी थी, द 5 मिनट ग्रेटिट्यूड एंड क्लैरिटी जर्नल हैक। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि जर्नलिंग शुरू कैसे करे, शुरुआत में किसी को भी नहीं समझ में आता है, ओके। सो हियर आर द 3 क्वेश्चन जो तुमने रात को सोने से पहले हर रोज डायरी पे लिखने हैं, उनको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, उनको डायरी पे लिखो। नंबर 2, जो भी चीज तुमने उस दिन में सीखी है, इट कुड बी एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ अ स्किल, या आउटर सिचुएशन ने तुम्हें कुछ सिखाया हो, तुम अपने इमोशंस को बेटर समझ पा रहे हो, कोई भी चीज जो तुमने सीखी है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मुझे पहले नहीं आती थी बट मैंने आज इस चीज को बेटर तरीके से समझा है, राइट इट डाउन। नंबर 3, 1 goal for tomorrow. This simple practice rewire your brain to focus on positivity and keep you mentally clear about your priorities. Let me share my story. After my mother, मुझे ये एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी that कोई भी किसी के इमोशंस को, पेन को नहीं समझ सकता, ओके, चाहे वो आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो, नहीं समझ सकता। मुझे ये चीज भी तब रियलाइज हो गई थी दैट आई वॉज रॉन्ग। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी समवन टू फील द पेन जिससे मैं गुजर रही थी, और मुझे समझ पाते या मुझे वैसे ही ट्रीट कर पाते, नहीं समझ पाता भाई कोई किसी की पेन। पता नहीं क्यों हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कोई समझे, या बस उस टाइम पे मैं सिर्फ अकेला रहना चाहती थी। एंड उस अकेलेपन ने मुझे जब मैं खुद के इमोशंस को समझ रही थी, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही थी, उस पेन से उस पेन को प्रोसेस कर रही थी, उन इमोशंस को प्रोसेस कर रही थी, एक पॉइंट के बाद मुझे ये चीज समझ में आ गई थी दैट मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। और ऑब्वियसली मेरे ऊपर मेरे पास मेरा भाई था, मेरे पापा थे, एंड आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो मेरे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो आई हैव टू एनी हाउ, मुझे हील होना था, मुझे कैसे भी करके मुझे जस्ट उस चीज से मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वर्ड्स उसके लिए यूज होंगे। उस टाइम पे मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी, मैंने लिखना स्टार्ट करा। आई जस्ट यूज टू क्राइड अ लॉट एंड रॉट अ लॉट। मैं सिर्फ रोती रहती थी और लिखती रहती थी, जो भी मुझे फील हो रहा था, जो भी मैं फील कर रही थी। ऐसे कह सकते हैं कि भगवान से बातें करती रहती थी और बस लिखती रहती थी कि जो भी मुझे फील हो रहा था। एंड जर्नलिंग हेल्प मी इन अ वे दैट नो कॉन्वर्सेशन कैन एवर कुड, ओके। मतलब कोई कॉन्वर्सेशन ने मुझे हेल्प करा ही नहीं था उस टाइम पे। कोई किसी की बातें, किसी का कुछ समझाना, मुझे सब ऐसे फेक लग रहा था कि यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, क्या बात कर रहे हो। तो उस टाइम पे बस मैं, मेरी डायरी, मेरा पेन और मेरे आंसू सिर्फ यही चीजें होती थी जो
जिन्होंने मुझे अपने इमोशंस को जैसे जैसे मैं लिखती गई, और उसी चीज ने मुझे इस चीज से निकाला है, निकाला इन द सेंस कि मैं अपने इमोशंस को उस टाइम पे समझ पा रही थी, जो भी कर पा रही थी, मैंने जस्ट जो भी फील कर रही थी मैं बस लिखती जा रही थी. आई बिगिन टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बेटर. एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आने लगा what I was truly missing, और what I needed to heal. How can I grow stronger from that pain. बहुत लंबे समय के बाद मुझे क्लैरिटी मिली, स्ट्रेंथ मिली टू मूव फॉरवर्ड while honoring my mother's memories. If journaling can help someone like me in the hardest moment of my life, I can guarantee you that it can help you too. Okay? Journaling is way more than just writing your thoughts. So लिखना शुरू करो. तुम खुद को बेटर समझ पाओगे. तुम्हारा ये सोचना कि कोई तुम्हें समझे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद को समझ पाओगे. पंजाबी में एक कहावत है कि मंदा की समझाना, इधरों पट के उधर लाना. तुम अपने आप को समझा पाओगे. सारी बात सिर्फ खुद समझने और खुद को समझाने की है. आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, हमारे रिलेशंस बेटर हो जाते हैं. सो स्टार्ट योर जर्नलिंग जर्नी as soon as possible. Like this video if you found it helpful, and don't forget to share it with someone who needs a clear mind. Thank you so much for watching.